in coming terms, September, November. So before moving on, I want all of you all to please just write your questions in the chat box and don't unmute yourselves in between. So just be on mute. Okay. So before moving ahead, I want to just tell you all that for the September term, the handbook is not released yet. So every term IFOA releases a handbook which has all the details for the coming term and everything like the entire guidelines and everything. Generally, term on term, the handbook is almost same. They change a few things here and there. If there is any changes in their equipment check or maybe any change with their exam format, they just put it over there. ठीक है, तो अभी तक इट्स नॉट आउट. मोस्टली हो सकता है अगस्त फर्स्ट वीक तक वो निकालेंगे. Yeah, maybe after. So that usually happens after the exam window closes. So maybe next week or next to next week, they will take out the handbook. So we'll have one video on handbook as well. Um, Apart from that, there is no change in the September term. Again, like previous term, it will be a center-based examination. So you'll have to go to the centers, respective centers in the respective cities. Apart from that, mm, I don't think there is anything changed. You have to appear for your exam on your MS Word. So typing is very mandatory. You all should start practicing typing. Very, very important. Um, that's second. And apart from that, I don't think there is anything changed. Okay? In case of IAI, so they have recently again said that we'll not be having full MCQ, which was, I think, somewhat we expected also, क्योंकि MCQ टेस्ट आप कितना कर लोगे CMCS पेपर्स में. तो सिलेबस इज नॉट सच कि हम खाली MCQ पे जज कर पाए. सो इट्स अगेन बैक टू नॉर्मल. दे माइट गिव यू MCQs, ऐसा नहीं कि MCQs नहीं होंगे. कितने मार्क्स का डिवीजन होगा MCQs, कितने मार्क्स के आएंगे, ईच MCQ विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, नॉट श्योर येट. बट आप लोग के पास दोनों चीज है प्रैक्टिस करने के लिए. आप लोग के पास पास पेपर्स है MCQ भी प्रैक्टिस करने के लिए. यू ऑल्सो हैव पास पेपर्स टू प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ठीक है. So I don't think again there is a drastic change. Again, one thing which is changing for IA students is you all have to start practicing the typing part. So most of you just thought कि मुझे typing नहीं करना पड़ेगा, but now you guys also have to practice typing, mathematical typing in MS Word again. ठीक है. So apart from that, there is no other changes. But हाँ, and they have also introduced ACET again. इंट्रोड्यूस तो मैं नहीं बोलूंगी, बट या दे वर नॉट रिलीजिंग द डेट्स. सो हम श्योर भी नहीं थे. सो अगस्त में आपका एसेट एग्जामिनेशन होगा. सो दोज आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट पेपर्स इन नवंबर एंड स्टिल नॉट क्लियर एसेट. आप लोग को नवंबर में एसेट का रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है. सो यू कैन रजिस्टर टुडे इटसेल्फ एंड आप लोग को एसेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ACET preparations can be done in 15-20 days also. So वैसा कुछ बहुत difficult वाला बात है नहीं, right? Which is full MCQ. Okay, so now I can take whatever questions you all have. Just put it down in the chat box very quickly. Anything you all want to ask and you're not sure about, I can just take it up. Okay. Ma'am, since exam is offline, Ashita, for IFOA, no, don't have to do any kind of referencing, but I will repeat over here. जो भी आप टेबल बुक से लेते हो, whatever values, like in CM1 you take a lot of values from your table book, in CS1, CS2 as well. So you have to give the page number का reference, like from table book, page number so and so, AM92 tables, page number so and so. So that definitely needs to go there. If you're taking any formulas from table book, any values from table book, so you have to mention the table book page number. Very, very important. Okay. When will we get the location? Is Purvi something which will happen at a very later stage? So location, I think you want to say कि कहाँ होगा exam in your city. ठीक है. तो वो आपका मिलेगा आपको
अभी नहीं, अगस्त तक मिलेगा। अगस्त फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक आपको मिलेगा। ठीक है। um, ठीक है, तो ये एक डाउट है टेबल बुक का। नाउ सिंस IFOA हैव नाउ स्टॉप्ड गिविंग टेबल बुक्स एट ऑल, दे आर सेइंग कि वो 2026 में शायद अब देंगे सीधा, विच इज व्हाट आई हर्ड लाइक फ्रॉम समवन। आई एम नॉट वेरी श्योर। तो टेबल बुक, yes, you all have to take your Xerox copies, but also please make sure you all don't have anything, scribbled on it. Underlining and all चलेगा फिर भी कहीं ना कहीं। If you have done, अब से मत करना कुछ भी अपने टेबल बुक में, but don't write anything, or make sure nothing is mentioned, nothing is done in your table book. It's completely fresh Xerox version. Yes, I think you can take it because IFO is not giving the hard copies of table book now. And they're also not accepting the orders. They're just taking the online version ka orders. Offline, they might give the hard copies. They might be able to send it by next year or year end, this year end. So then hopefully Xerox version will be allowed, because last time also many students took the Xerox version and they were allowed in the examination center. Just that you have to be very sure about that. You don't have to, not writing anything within the table, scribbling and all is not there. So that's very important. Um, See, Mahi, I'll just come to it about how much time you should spend. Um, Pallav, there's nothing you can do for PPT exemption, because PPT exemption के लिए वो 3 months पहले, 2 months पहले, 1 month पहले, 7 days पहले, continuously they are sending mails. So if you have skipped so many mails, then you have to give that £50 का जो भी उनका रहता है, तो वो आपको देना पड़ेगा. What you can do is you can call them, you can request them, maybe if they are ready, they can वहां से वो अपने एंड से हटा सकते हैं. बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो नहीं हटाएंगे, बिकॉज वो इतना सारा आपको भेज चुके हैं ऑलरेडी मेल्स, एंड स्टिल यू इग्नोर्ड इट. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम योर पार्ट एज वेल, ऑन योर पार्ट एज वेल. सो आपको हो सकता है देना पड़े, बट यू कैन ट्राई, यू कैन कॉल देम एंड यू कैन रिक्वेस्ट कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, आई मिस्ड द मेल्स, सो कैन यू जस्ट डू. ठीक है, तो वो चीज. एंड हाउ टू टेक पीपीटी एक्सेम्पशन, दिस इज देयर इन आवर वेबसाइट. मतलब हमारे जो आप पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे Q&A सेक्शन पे पीपीटी एक्सेम्पशन का हमने डाल रखा है. सो यू ऑल कैन जस्ट गो एंड चेक हाउ टू टेक पीपीटी exemption. um no, questions need not be answered serially, definitely, क्योंकि वर्ड फाइल है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट सिंस इट इज वर्ड फाइल, प्रेफरेबली आप सीरियली करो, क्योंकि इवन इफ यू आर डूइंग अ थर्ड क्वेश्चन पहले, आप उसके ऊपर पेज इंसर्ट करके सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो. सो इट्स प्रेफर्ड दैट यू डू serially. Like whenever I attempted all my like last के 4-5 exams online, since it was word file, so it was a advantage on my part. So मैंने वैसे ही करा, मैंने serially करा, because the examiner feels good when examiner checks the paper. He feels good. It's easier for him or her to check the paper. That's one thing. Second thing is आप लोग जब लिख के करते हो तब नहीं हो सकता वो चीज. तो पहले हम जब हार्ड कॉपी में लिखते थे, देन एट दैट पॉइंट इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू डू इट. बट अब भी वैसा कुछ सीरियली का प्रॉब्लम है नहीं. Ma'am, will we be provided with extra sheet? Yes, you will be provided with extra sheet or rough paper in IFA exam. IFA exams are very nicely carried out. They have proper rooms, proper sitting space, and they'll give you um, water bottles. Maybe they used to give. I think last time भी दिया था उन्होंने, but still you can carry your water bottles. That's fine. Transparent फाइल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, जैसे जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एग्जामिनेशन हॉल टिकट एंड वो सारी चीजें, पेन एंड ऑल अगर कुछ लेना है तो यू कैन जस्ट ट्रांसपेरेंट फाइल या ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स रखना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, दे विल गिव यू रफ शीट्स. हो सकता है बहुत ज्यादा मांगोगे तो नहीं देंगे, बट 2-3 रफ शीट तो डेफिनेटली देंगे. स्टिल यू कैन टेक योर A4 पेपर्स. सी अगेन, ये थोड़ा पता चलेगा जब हैंडबुक आएगा. तो हैंडबुक जैसे ही आएगा तो हम इसके बारे में और श्योर हो जाएंगे. बट आप अपना रफ पेपर लेके जा सकते हो, विच इज A4 साइज पेपर, ब्लैंक शीट्स लेके जा सकते हो. इफ दे अलाउड, इफ यू आर अलाउड टू टेक इट इन, वेरी गुड. नहीं तो दे विल गिव यू. ऐसा नहीं होगा कि दे विल नॉट गिव यू.
ठीक है. CM1 ESET का प्रिपरेशन पे मैं आऊंगी. ठीक है महिमा, since I have a lot of questions there, I'll come to that question. I've just applied for membership. As student, do I have to do PPD? Is a yearly thing. ठीक है. So every year, since you have taken the membership now, तो अभी नहीं आएगा, next year आएगा आपके पास PPD का request. तो तब आपको वो पूरा process follow करना है. ठीक है. Ma'am, I have done till CS1 point estimation. Should I consider giving exams in September? Is it possible to complete the syllabus and give exams in September? See, CLT point estimation तब किया है, and considering NES, you have done both paper A and B, so you can still appear for exams in September, provided you are ready to give 8 to 10 hours every day. If you are ready to give that, you will be able to finish your syllabus in next 20 days maybe, and then you'll have like a month for revision. So I think it's good to go. You can do it. ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो. Siddhi, very difficult to say how many questions will be there in CS1. You can just check past papers. 8, 10, 9, 11, 10, कुछ भी, कितने भी questions आ सकते हैं, ranging in that thing. Ma'am, I have done 4 chapters of CS2 only. For Tanisha. Tanisha Agarwal, I hope you're attending my CS2 sessions. In my last CS2 live lecture, I've given an entire, November का कैसे timeline आपको follow करना है. So if not, you can just go back and revisit that video, which I have, like last term या last class से last to last class मैंने पूरा समझाया था. So just go and check. Ma'am, in CM1. Also, one thing you need to make sure is you are attending live sessions, not only of the main faculties, but also of the industry experts. It's very important क्योंकि industry expert sessions में वो doubt solving करवाते हैं, question answers करवाते हैं, and हमारा जो पूरा team है, ठीक है, we've not just ऐसे ही हमने team नहीं बनाया है. We've selected like best of candidates, best of students, best of faculties हैं. Because we have taught so many students, उसमें से हमने cream जो एकदम top होते हैं, जैसे CS1 faculty अगर आप हमारा देखो, सिद्धार्थ सर all time topper, cleared all papers in one attempt. Then we have CM1 maybe same, we Aditi, we have Khushi, all of these faculty, Mokshit, all time toppers and very 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 brilliant minds. CB1 या CM1 या जो भी आप देखो, CB2 देखो, आप CP2, CP3, CP1 देखो. So all of them are very good. So if you are attending our class and not attending their classes, very bad. Vice versa also very bad. आपको सारी live classes attend करने हैं, because what I feel is जो FOMO का concept है ना, FOMO का concept नहीं आता है. तो अगर आप FOMO आपको feel होता है, if you're not going out with friends and you're feeling like you're missing out on something, I think you should be more guilty of missing on your live sessions. Because if you're missing on your live sessions, then you are missing on a lot of things. Because most of the questions that you guys are asking are the questions that we cover in just simple discussion in live classes. Ma'am, how to balance this and that. Ma'am, how to do. We talk a lot. We're just not teaching. As a faculty, we are talking also. Okay, so we are discussing a lot of these points in classes. So if you guys are, and I used to feel it when I was in college, when I was attending classes, and when I used to miss my live sessions, I used to have actual FOMO कि हाँ भाई मैंने कुछ मिस करा है अपने लाइफ में. I've missed my live sessions which were actually very important for me. So you guys need to understand, and exam के जितना आप close जाओगे, हम सब important questions discuss करेंगे, हम सब सब important चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको वो अटेंड करना ही है. ठीक है, यू कैन नॉट टेक अ चांस ओवर हियर, बिकॉज आपने जो इतने टाइम का मेहनत किया है, जस्ट 1.5 months, 2 months, 3 months to go, right, for September, November. So you cannot just drop it at last. So see, all the IAI related, IAI students, for them, it is important to solve IFOA questions first. तो आपको सारे IFOA questions पहले solve करने होंगे, फिर IAI. तो once the September term is done, we'll be focusing on the IAI questions. Why is this important? अगर आप IAI का कोई भी past paper उठा के देखोगे आकांक्षा, you will see a lot of similar IFOA questions. Like I'll take my example. When I appeared for CT8, which is now CM2, in that term, it was I think March 2018.
You all can go and check the passing results were very bad. It was, I think, around not even, I think 9-10% के around था. Only 12 students cleared the exam and I was one of them luckily. And उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन सिमिलर आ गए. Like घुमा फिरा के उन्होंने आईएफओ के क्वेश्चंस दे दिए, एक्सरसाइजमेंट के क्वेश्चंस दे दिए. पहले क्यूएनए बैंक होता था, विच इज अभी चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस है वहां से दे दिए. सो फॉर आईएएस स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस सॉल्व आईएफओ फर्स्ट, बिकॉज आईएफओ का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो थोड़ा स्लाइट इजियर होता है. तो अगर आप आईएफओ को अपना बेस नहीं बनाओगे क्वेश्चंस को, आप आईए नहीं कर पाओगे. तो पहले आईएफओ अच्छे से करो आकांक्षा, एंड देन वी मूव टू आईए एज प्रॉमिस्ड. There's nothing that we will miss on our part. You might miss it by not attending the live sessions, but there's nothing that we will miss on our part. तो हम सब करवाएंगे. And please also give mock exams. The mock exam turnouts are very very low. I don't know why. अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ही मॉक देंगे या हम प्रॉपरली रिवाइज करके मॉक देंगे, you guys have mistaken. It's not a final exam that we are conducting. It's a mock exam. मॉक, मॉक का मीनिंग जाके गूगल पे सर्च करो होता क्या है. सो मॉक क्यों आप मॉक पेपर देने का क्या मतलब है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ वीक हो. आपको हो सकता है लगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट मॉक एग्जाम देने के बाद आपको रियलाइज होगा नो, इट्स समथिंग विच आई हैव टू वर्क ऑन. मुझे ऐसा लग रहा था आई एम स्ट्रॉन्ग एट इट, बट आई एम नॉट एक्चुअली. एंड कोई जो आपको लगता हो वीक पार्ट है वो एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ हो, क्योंकि आपने उसको इतने बारी पढ़ लिया है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो चुके हो. So that is one of the biggest reasons you guys have to sit for mock exams, right? I started my. ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन पहले. सो एसेट का जो प्रेपरेशन है, स्टूडेंट्स आर स्टार्टेड विद CM1 और CB1 एंड CM1 फॉर नवंबर टर्म, वट एवर इट इज. आपका आई थिंक कब है एग्जाम एसेट का? अगस्त में चली तो आया ना, 30th अगस्त को है. तो आपके पास 1 मंथ है, मतलब 1 मंथ से भी थोड़ा ज्यादा है, विच इज लाइक मोर 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 देन इनफ. मैंने 15 दिन में पढ़ के एसेट दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है. दोज हु हैव टेकन क्लासेस फॉर एसेट, तो हमारे क्लासेस फॉलो करो. दोज हु हैवंट, यू ऑल कैन टेक अप द एसेट क्लासेस. एंड हमारे एसेट क्लासेस को अगर आप बस फॉलो कर लोगे, एवरी डे 2 hours, दैट्स इट. एवरी डे आपको 2 hours देना है एसेट को एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है. सो कंसिडरिंग आपका नवंबर में अगर CM1 का एग्जाम है, आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3.5 months है, बिकॉज इट्स समवेयर इन द एंड ऑफ नवंबर, 20th के बाद है. सो 3.5 months, एंड इसके लिए आपके पास 1 मंथ है. तो एवरी डे अगर आप 5 hours दे रहे हो टू योर कोर पेपर्स, CM CB वट एवर यू हैव टेकन फॉर नवंबर, एंड 2 hours खाली आप दे रहे हो एसेट के लिए, आपका एसेट फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट एसेट. ऐसा नहीं है कि अगर एसेट रिलीज हो गया अगस्त में तो हम नवंबर टर्म डिच कर देंगे. दैट विल बी द मोस्ट stupidest thing you can, like the most stupid thing you can do in life, because एसेट एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट नहीं है. यस, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको उसके इंट्रिकसीज आपको समझने पड़ेंगे. उसमें इंग्लिश है थोड़ा, तो वो आपको अलग से थोड़ा करना पड़ेगा. स्टेटिस्टिक्स थोड़ा करना पड़ेगा, वो चीज है. बट गिविंग 2-2.5 hours एवरी डे विल बी सफिशिएंट इनफ. मे बी लास्ट का 1 week खाली एसेट को दे दिया, 30th वाला जो वीक होगा वो पूरा दे दिया, fine enough. But apart from that, it's not very difficult. We have also done it. Like I have appeared for ACET, and I think it was on 1st of April, and देन उसके बाद, मतलब मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, एंड देन उसी मंथ में 15 days बाद मेरा CS1 का एग्जाम था, CT3 का. एंड मैंने एसेट एकदम लास्ट में डिसाइड किया था कि मैं दे देती हूँ चलो, एंड IFO से मैं दे रही थी पेपर्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने भी नहीं किया, सब लोगों ने 2-2 पेपर 3-3 पेपर मैनेज किया. सो अपियरिंग फॉर एसेट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग डील दैट यू आर डूइंग इन लाइफ. 2-2.5 hours एवरी डे बस आपको अलग से वर्ड निकालना पड़ेगा टू क्लियर एसेट, विच अभी तक आप नहीं कर रहे थे. मान लो आप अभी तक खाली 5-6 hours उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा अलग से और इन्वेस्ट करो, अलग से थोड़ा और 2-2.5 hours इन्वेस्ट करो एसेट में, एंड यू आर गुड टू गो, नो प्रॉब्लम. Hi ma'am, I'm preparing for IFO September. I was just give me a second.
ठीक है. So I am appearing for IFA September. I was a bit concerned about my backlog. I have completed only. See, in such a case, Gargi, you can only appear for one paper. अगर आपको लग रहा है कि एक पेपर में बहुत बैकलॉग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से पेपर में बैकलॉग है, सीएम सीबीटी, और क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. बट अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एक पेपर में बहुत बैकलॉग है, दो पेपर हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, सो जस्ट ड्रॉप वन पेपर एंड अपियर फॉर वन पेपर. सी, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गाइज आर नॉट हैविंग दैट काइंड, तभी मैं बोल रही हूँ मॉक दो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा. मॉक देने से ही तो समझ में आएगा कि कहाँ पे यू आर स्टैंडिंग. सो ठीक है, चलो. बट इफ यू फील कि नहीं होगा, देन यू जस्ट ड्रॉप इट, नो प्रॉब्लम. कभी भी बर्डन मत लेना. बर्डन देखो लेना पड़ता है. इफ यू फील, जैसे मैंने CT4 एंड CT6 जब भी साथ में दिया था, तो बहुत कम लोग, आई मीन वी वर जस्ट 3 or 4 of us who were appearing for both the papers together. Just many people were there who were not appearing, either only CT4 or only CT6. जो अभी CS2 हो चुका है, पूरा पूरा नहीं हुआ है, काफी सिलेबस इन्होंने हटा दिया. बट वो प्रेशर हमेशा रहता है कि ना, नहीं हो पाएगा, तो ये वो 100 of thoughts going on in your mind. But trust me, if you are putting in that kind of effort, अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो, अपनी टीचर का बात ध्यान से समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका पेपर निकल जाएगा. यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. आपने अगर दो पेपर स्टार्टिंग में लिया, you cannot afford to go for a vacation. मतलब I cannot just come and say, oh, I went for a vacation and I have a backlog. मतलब that's the most unprofessional thing you can do in life. Why did you take the two papers together if you had a plan to go for a vacation? Some unwanted situation coming in, some something happens in family, health issues, those are considered, मतलब those are considerable, समझ में आता है. बट आप ये सब फालतू चीजें कैसे बोल सकते हो कि आई टुक 2 पेपर्स, आई वेंट ऑन अ वेकेशन, आई हैव सो मच बैकलॉग. यू हैव टू ग्रो अप. ठीक है, चलो स्टार्टिंग के पेपर्स हैं, चलेगा. स्टार्टिंग के पेपर्स नहीं बोलूंगी, फर्स्ट टर्म है, चलेगा. बट सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, इफ यू गाइज आर नॉट सीरियस, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन नेवर बी अ क्वालिफाइड एक्चुअली. फॉर बीइंग अ क्वालिफाइड एक्चुअली, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई भी करियर में जाओ, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज करो, आप नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है. I have seen a lot of very good students going for like 15 days, 20 days vacation. Still, what they do is पहले से बहुत कुछ कवर करके जाते हैं, आके पूरा वो कवर करते हैं, दिन रात पढ़ पढ़ के, एंड बैकलॉग नहीं होने देते हैं. So that is the kind of discipline, consistency you need to have in yourselves. अगर नहीं है, आपको 4 साल तो भूल ही जाओ, आपको 6, 8, 9, 10, पता नहीं कितना साल लगेगा, पता नहीं. ठीक है. So from next time, please be very disciplined. If you are not, this profession does not deserve you. ठीक है, क्योंकि एक इंसान जब बोल रहा है आई एम क्वालिफाइड एक्चुअली, उससे हम एक बहुत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हो, वो कंसिस्टेंट हो, बहुत चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं. अगर अभी से वो आपके अंदर इनकलकेट नहीं हो रहा है, देन ये प्रोफेशन आपको चूज नहीं करेगा कभी. आपने चूज किया अलग बात है, आपको प्रोफेशन नहीं चूज करेगा. सो वो आपके अंदर अभी से, सबके अंदर आना चाहिए. वाइज आर 19, 18, 20, वट एवर, बट आपके अंदर अब ये चीज आना चाहिए धीरे धीरे. राइट. डू हैव टू परचेज? नहीं. जाके देखो वृंदावती, वो अभी भी वैलिड होता है. सो इफ यू परचेज IAM मटेरियल विच इज मैंडेटरी, आई थिंक 2 साल तक या 1 साल तक कुछ ऐसा वो रहता है. तो अगर आप लॉग इन करोगे, तो उसमें अगर आपका मटेरियल दिखा रहा है, देन इट्स फाइन. एंड यू आर गिविंग इन नवंबर, तो अभी उसका नहीं, आई थिंक सेप्टेम्बर, जब भी उसका खुलेगा रजिस्ट्रेशन, तो जब आप जाओगे वहां पे रजिस्ट्रेशन के वहां पे, तो वहां पे दिखा देगा आपको वेदर यू हैव टू परचेज और नॉट. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपको 2 years हो गए ना, नवंबर 23 में आपको दिया था. तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. जस्ट गो इन द लॉग इन पोर्टल एंड चेक कि आपका वो अभी भी है कि नहीं एक्सेसिबल. अगर अभी भी एक्सेसिबल है, तो आपको नहीं परचेज करना पड़ेगा. दैट यू आई थिंक ओनली अंडरस्टैंड वंस द रजिस्ट्रेशन ओपन्स, नॉट नाउ, आई थिंक सो. You can definitely prepare ASEC without coaching Akansha, but that will happen. That will take more time. So अगर आप यहाँ आप सोचो कि हम 2 hours दे देते हैं खाली,
तो खाली 2 hours नहीं, आपको 4 hour 5 hours में भी देना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रीसेट खुद से, क्योंकि आपको सिलेबस पैटर्न समझना पड़ेगा। आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है तो मटेरियल आपको जुगाड़ने पड़ेंगे। कैसे क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आपको बहुत 100 of things यू हैव टू कंसिडर। तो करते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैंने भी एसेट विदाउट कोचिंग पढ़ा है, तो हमारे टाइम पे तो नेगेटिव मार्किंग देता था, बट आई हैव पुट इन दैट काइंड ऑफ time to that. If you feel you have that kind of time with yourselves, it's fine, you can do it, but उस समय एसेट के क्लासेस होते भी नहीं थे, बहुत कम थे, थे ही नहीं आई गेस। तो what I feel is after a after few days या few years in fact, आपको रियलाइज होगा कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आज के दिन पे अगर जिस चीज का आपको ट्यूशन मिल रहा है, कोचिंग मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज ये कोचिंग ऐसे ही नहीं है कि भाई हाँ बस ठीक है, वो आपको गाइड करने के लिए है, आपको समझाने के लिए है। आपके पेपर्स एक एक बार में निकल जाएंगे, आपके पेपर्स एक एक बार में निकल जाएंगे। ठीक है, तो आई फील आपको ले लेना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। yesterday also I was talking to someone very brilliant student, तो मैंने उसको वही बोला कि CP3 वो सोच रही थी देने का, तो मैंने बोला कि CP3 तुम ले लो क्लास, बिकॉज स्टूडेंट्स फेल, मतलब वेरी आई हैव सीन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स फेलिंग इन CP3। तो वही बात है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेलिंग इन एसेट ऑल्सो। तो आपको फिर लगेगा यार कोचिंग ले लेते, टर्म नहीं वेस्ट होता, तो वो चीज अगर मन में है, बट खुद से क्यों नहीं कर सकते, खुद से सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन होगा नहीं, महिमा देर इज नथिंग ऑफलाइन आई है का अभी तक, आई थिंक ऑफलाइन एग्जाम का नहीं उन्होंने बोला है, ऑनलाइन है बट सब्जेक्टिव कर दिया उन्होंने, जस्ट लाइक बिफोर, लाइक 2 to 3 terms बिफोर उनका वैसे ही था, ऑनलाइन होगा, घर से होगा, बट रिटन होगा, एंड इट्स प्रॉक्टरिंग, तो कैमरा ऑन रहेगा। वी हैव एसल, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने ले लिया है। आई ऑल्सो टुक अ बाउंस बैक सेशन ऑन सैटरडे, जो यूट्यूब पे है हमारा, वो मैं सब जगह फिर से डलवा दूंगी। दैट सेशन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने कवर किया है कि थ्योरी क्वेश्चंस कैसे, हाफ एन आवर का ही सेशन है, थ्योरी क्वेश्चंस, कमेंटिंग क्वेश्चंस, कैसे डील करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो यू ऑल कैन जस्ट गो एंड जस्ट विजिट दैट वीडियो, जस्ट सी दैट वीडियो, काफी आइडिया लगेगा। आस्था नहीं, आपको लैपटॉप, अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो IFOE के, तो आपको लैपटॉप मिलेगा उधर, कंप्यूटर मिलेगा, यू डोंट हैव टू कैरी योर्स। हाँ शिवा, यू कैन गिव इन नवंबर। ये सिर्फ थोड़ी बार बार देते हैं, सिर्फ तो एक ही बार देते हैं। Yes, definitely. The MCQs that we have, Rashmika, we have put on the LMS are great. मतलब अगर आप वो अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, you are very good at it. मतलब एक्चुअली में हमने डिफिकल्ट MCQs पोस्ट किए, ऐसे वैसे नहीं किए। Akansha, for CMCS papers, for IEI CMCS papers, you will have Word file. So mostly you will also be able to access Excel, mostly. But for other papers like CP papers, SP, essay papers, you'll just have to write in a text editor. They give you a text editor on their portal itself. So उसमें आप Excel नहीं कर सकते हो use. In electricity failure, remote exams, Tanisha, this is something which is your hard luck. तो अगर आपका बहुत ज्यादा वैसा है तो हो सकता है, वरना आप सोचो ना, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, है ना। तो मतलब विच इज बेटर, मेरे लिए ऑफलाइन एग्जाम्स आर ऑलवेज बेटर, लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स में अगर मेरे से पूछो, क्योंकि भाई आपको आराम से जाना है उधर, सब कुछ कन्वीनियंट है, आराम से उधर बैठ के एग्जाम देना है, सेंटर्स भी उनके बहुत अच्छे होते हैं IFOE के, सो ऑब्वियसली मतलब, एंड हाउ कैन, मतलब व्हाई शुड आई डिसाइड बेटर है कि नहीं, अगर आप ऑफलाइन दे पा रहे हो, जस्ट गो एंड अपियर फॉर एटलीस्ट once in a lifetime experience to appear for offline professional exams. I mean, it's very good, very good. I miss giving on offline exams, seriously. So हाँ, Tanisha बोल।
मैम सेंटर वाला इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं, जो हमारे होम मैं इन्विजिलेशन मैं हेलीकॉप्टर। समझ गई कि आप घर का ही बोल रहे हो। घर पे अगर हो जाते हैं देन उसका तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा ना आईएफओ, वो तो आपका फॉल्ट है। वो नहीं होना चाहिए, तो आईएफओ उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक मिटिगेशन फॉर्म फिल कर सकते हो लास्ट में, बट देन वो मिटिगेशन फॉर्म का भी आई थिंक 3 to 5 मार्क्स तक वो कंसिडर करते हैं। सो वही मैं बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आपके घर पे भी अगर नॉर्मल डे पे, नॉर्मल एग्जाम भी पहले भी जो ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था, उसमें ही अगर हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो आई IFO will not take any kind of responsibility of electricity failure, Wi-Fi switching off, this happening, that happening. That is your concern. वो IFO का कंसर्न नहीं है। IFO थोड़ी आपके घर पे आके इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। ठीक है मैम। फ्रॉम व्हेन नवंबर बैचेस स्टार्टिंग? नवंबर बैचेस have already started, Lakshya. Yes, it's enough time to complete the syllabus on time. Um, guidance. I'll come to it. Actually, मैं academic queries नहीं ले रही हूँ अभी। पहले मैं नॉन academic लेती हूँ बिकॉज आज का सेशन उसी को लेके है। I think, Astha, it will be better if you attend online lectures and you can ask this to the teacher. Like मेरा भी एक सेशन हुआ था, आप कुछ भी मेरा हो या किसी का भी हो, अटेंड करके उसमें पूछो ये सारे क्वेश्चंस. Can I write ARN password on a blank paper and take it with me? No, Siddhi, you don't have to do that. ARN password आपको blank paper पे, आपके पास वो रहेगा ना, what do you call this, एग्जाम का वो, हम क्या बोलते हैं, हॉल टिकट, तो उसमें तो ARN रहता ही है। एंड पासवर्ड आप याद रखो ना, मतलब लिख के क्यों लेके जाना है, अंदर नहीं लेके जाने देंगे, बाहर तक हो सकते है आप छोड़ दो। ऐसा पासवर्ड रखो जो याद रहे ऑब्वियसली। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CM1? हाउ टू प्रिपेयर फॉर CM1 थ्योरी? दिस क्वेश्चन आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन। गाइस प्लीज गो एंड सी माय बाउंस बैक सेशन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है ये सारी चीजें। उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया कि लास्ट के मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपको। Anyone can take refund due to any other thing other in location problem? नहीं रिद्धि, you cannot take a refund. आप इंस्टीट्यूट को क्या समझते हो, वो आपका फ्रेंड थोड़ी है भाई कि आप जाके उनसे रिफंड मांग लोगे। इट्स अ प्रेस्टिजियस, one of the oldest and one of the most prestigious institutes of the world, IFOA. तो भैया क्या समझ के रखे हो उनको। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेट इन लास्ट? आप अपने प्रोफेशन को इतना लोली कैसे ले सकते हो, ये सब क्वेश्चंस नहीं ले सकते रिफंड अनलेस इट्स अ सीरियस मेडिकल इशू दैट हैज कम इन। उसके लिए बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड दे डोंट गिव अ रिफंड, दे डेफर इट टू द नेक्स्ट टर्म। तो वो हुआ है स्टूडेंट के साथ हमारे, दे डेफर इट टू द नेक्स्ट टर्म बट दे डोंट गिव अ रिफंड। रिफंड वाला ऑप्शन लास्ट टाइम था खाली क्योंकि ये लोकेशन का कुछ इशू की वजह से, बट आई डोंट थिंक इस बार होगा। मैंने इनसे पहले बोल दिया है। Yes, you can appear for the mock exams, Mitali, even if you're appearing from IEI. No problem. Revision tactics मैंने मॉक एग्जाम लास्ट डेट सबमिट करने का, अनीश आई एम नॉट प्रिटी श्योर। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा ग्रुप में, या फिर आप एक बार क्वेरी रेज कर दो। मैं एक बार बता देती हूँ, अभी मैं क्लास इसके बाद सेशन के बाद मैं भेज दूंगी ग्रुप में। टेबल बुक मैंने बोल दिया, जेरोक्स वाला ले सकते हैं कृष्णा, अगर नहीं आया तो अभी तक। नहीं, आईए के लिए नहीं ले सकते, सॉरी। आईए वाले तो कर ही रहे हैं, तो आईए से आप ऑर्डर करना पड़ेगा। आईए स्टूडेंट्स हैव टू ऑर्डर टेबल बुक, यस, लिसन अप। आईए स्टूडेंट्स हैव टू ऑर्डर अ टेबल बुक। आईएफओ स्टूडेंट्स के लिए है कि जेरोक्स ले सकते हैं बिकॉज उनका टेबल बुक अवेलेबल ही नहीं है। यस संयम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्ड CM1।
IEI में भी आई डोंट थिंक MS वर्ड 2007 इज द लाइक मोस्ट आउटडेटेड एंड ओल्ड वर्जन, तो वो नहीं होगा अलाउड। अभी तक IEI का भी गाइडलाइंस नहीं आया, बट लास्ट टाइम का गाइडलाइन उठा के देख सकते हो सही हम। यू कैन जस्ट गो एंड चेक IEI में 2025 गाइडलाइंस, तो उसमें आप देख सकते हो जहां तक है 2013 एंड अबव ही बोला है उन्होंने। 10 एंड अबव या 13 एंड अबव बोला है, सो 7 नहीं चलेगा। हाँ गांजा, BCom from Seoul is fine, but I would always prefer having a college life. Like, you should definitely get into a college. क्योंकि I don't think it's difficult to manage actuarial science with college. तो I think college जाके पढ़ना will be better than online करना, ठीक है? आकांक्षा, मैम in last term we were not able to use the couple of functions in Excel like multiple. Do I have to release a list of functions? Hmm. नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आस्था कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज कर पा रहे थे। आई विल कंफर्म दिस आस्था, एक बार मैं पूछती हूँ। आई एम नॉट श्योर, बट दैट समथिंग विच यू माइट बी यूजिंग फॉर पेपर ए, है ना? तो इसीलिए उन्होंने फोरबिड कर रखा होगा, उन्होंने हटा रखा होगा वो फंक्शन, हो सकता है, ताकि आप नहीं, लिस्ट ऑफ फंक्शंस वो नहीं देते। क्या पता इस बार हैंडबुक में दे दे आस्था, IFOA के, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कंफर्म दिस एक दो जनों से कि उन्होंने ट्राई, अगर ऐसा है आपके साथ, आई ट्रस्ट यू, अगर ऐसा है आपके साथ तो फिर ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली जैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो वैसे करके करो, और क्या उपाय है बताओ। बट ड्यू टू, हर्षिता दिस इज द केस, तो आप एग्जाम मत दो सितंबर में, अप्रैल में देना। सी गाइस, मतलब ये आपके ऊपर है। अगर ये आपका लाइफ है, आपको इसको वेस्ट करना है कि आपको इसको कुछ अपने लाइफ को बनाना है, तो वो तो आपके हाथों में है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा बैकलॉग चल रहा है, वॉट एवर द रीजन इज, तो आपके हाथ में। आप नेक्स्ट टर्म, पहले हम बहुत बोलते थे स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि पहले के स्टूडेंट्स में और अभी, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, अभी स्टूडेंट्स और पहले के, वी यूज्ड टू नेवर गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि बैकलॉग है भाई, बैकलॉग है। बैकलॉग होता भी था ना, तो वो सोच के रखते थे कि कवर करना है पर एग्जाम तो देना है। आई मीन वो जो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट है, वो आपको फील होना चाहिए फॉर नॉट सिटिंग फॉर एन एग्जाम। वो गिल्ट जब तक आपके मन में नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे एग्जाम्स के लिए। तो हैविंग अ बैकलॉग इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग यू कैन हैव इन योर शुरू के पेपर्स, क्योंकि शुरू के पेपर्स में तो आप कॉलेज में हो कि भी कैसे बैकलॉग आ सकता है। व्हेन यू आर वर्किंग अपियरिंग फॉर SP ऐसे पेपर्स, वेरी वेल अंडरस्टूड। CM CS पेपर्स में अगर किसी को बैकलॉग आ रहा है कॉलेज के साथ साथ, कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, बट हाँ ठीक है, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकते हैं। इन सच ए केस, अगर आपको फील होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं 8 to 10 आवर नहीं दे के खत्म कर सकती हूँ सिलेबस एंड देन 1 मंथ फॉर रिविजन, इफ स्टिल दैट इज व्हाट यू फील, देन जस्ट लीव इट, कंप्लीटली फाइन, अप्रैल में देना। बट इफ यू फील कि थोड़ा सा भी होप है कि हो सकता है, हम पुश कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सेट फॉर इट। Yes, you can, Mahima, you can able to give IF ACET also, and CM1 भी कर सकती हो, no problem. Then what is the main material? Compiler. My compiler CB2 में सबसे important है रश्मिका, and then past papers. नहीं, अभी से नहीं परचेज कर पाओगे हिमांशु, बीइंग अ नॉन मेंबर। CM CS कोई पेपर का परचेज करना है तो उसके लिए यू हैव टू, आई थिंक, बिकम अ मेंबर। नहीं तो आप मेंबर नहीं हो तो आपके पास वो है ही नहीं ना लॉगिन उसका, मेन अकाउंट का, तो नहीं कर पाओगे। हाँ, पार्शली सब्जेक्टिव है पेपर IA का। प्रोजीत मिक्स होगा, टाइपिंग एंड MCQ।
Yes, you can use equation editor in Word, Siddhi. No problem if you're comfortable with it. If I'm not able to answer the question in MCQ on the portal even after finishing syllabus, Ashita, then you have to revise, ना? Then you have to obviously revise. अगर कोई particular chapters के MCQs बहुत गलत कर रहे हो, कि सारे ही गलत कर रहे हो, तो you have to revise. Yes, अपने अच्छे से नहीं, अपने आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो आप ब्रश अप करो, मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो खुद, लाइक पास पेपर से, तो वो होगा धीरे धीरे इवेंचुअली। 10 में से 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, फिर आपके 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, इवेंचुअली आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो उस तक के लिए जाने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। Location, Lavanya, depends not on the billing address, on the address that you have put in. दो एड्रेस आते हैं, एक होते कम। हाँ, आप अपने वेबसाइट, आप उस पे लॉगिन पे जाओ अपने IFOAK में, आपके वहां पे जो अकाउंट में जो आपने अपना डाल रखा है ना डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसमें जो एड्रेस डाल रखा है उस पर डिपेंड करता है, नॉट बिलिंग एड्रेस। एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर, कांशा, यस इट इज ऑन कंप्यूटर। पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है वृंदावती, दिस यू विल गेट टू नो। इसका भी अभी नहीं सोचना है, अभी प्रिपेयर करो। यू विल हैव टू टेक योर बानी टेबल बुक विथ यू, सेंटर पे नहीं मिलेगा। महिमा रिड्यूस्ड प्राइस में तो नहीं निकलेगा, जो हमारा कोर्स है वो ऑलरेडी क्रैश कोर्स ही है एसिट का। हम्म, तान्या, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी कॉलेज से एग्जाम देते हैं उनको एक एडवांटेज होता है कि वो कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, विच यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर। आई थिंक खाली यही एक डिफरेंस है। आफ्टर क्लियरिंग फोटो, यस आकांक्षी, यू कैन गेट अ जॉब आफ्टर सोल, बट अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मेरा सजेशन एक सिंपल कॉलेज होता है, बट सोल अगर आपको करना ही है तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे, कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स आते हैं उसके लिए नहीं बैठ पाओगे, ये सारे डिसएडवांटेजेस है। मैम कैन वी गेट पेपर प्रिपरेशन? There is no change in the one Vaishalik. There is no change in the paper, or there is no change in our preparation strategy anyways. तो सेम है, मतलब हमारा प्रेपरेशन डे वन से वैसा ही है, जैसा सब्जेक्टिव में था कि MCQ में था। तो उस बेसिस पे आपको कुछ एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। आई है तो हर 5 मंथ्स में कुछ नया चेंज निकालता है। एसेट अभी तक तो होम बेस्ड था, नॉट श्योर कि अभी आगे वो क्या करने वाले हैं, but yes, it will be mostly home based only. Yes, एग्जाम सेंटर तुम्हारा अफेक्ट हुआ आज था। प्रेफर्ड प्रेफर्ड एड्रेस अभी नहीं आएगा सिलेक्ट करने को। फॉर IFOA स्टूडेंट्स आपको ना नहीं मिलेंगे अलग से प्रेफर्ड लोकेशन करने के। आप अपने लॉगिन पे जाओ, IFOA लॉगिन पे, वहां जो आपने एड्रेस डाल रखा है will be the address, actual address that they will be taking up to allot you the centers. तो अगर आप दिल्ली में रहोगे तो चेंज इट टू दिल्ली, आस्था। जहां आप रहोगे उसको चेंज कर दो, अभी चेंज कर दो। अब देखो वो लेते हैं कि नहीं चेंज, बट वो उसको वैसे ही लेंगे, ठीक है, जहां तक ले लेंगे चेंज अभी आप जो करोगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ जो भी एकेडमिक क्वेश्चन है कि हमने इतना किया है, आगे का कैसे करेंगे, प्लीज अटेंड द लाइव लेक्चर्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव पेपर्स, एंड उसमें आप अपने फैकल्टी से पूछो। आप सैटरडे का मेरा सेशन देखो प्लीज, उसमें मैंने बहुत अच्छे से गाइड करा है कैसे क्या करना है। सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड that's it. Thank you so much. I'll be keeping one more such
Q&A सेशन, तो आप उसमें और अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।